Good afternoon, everybody. This is Dr. Amit here from Rudraksh Physiotherapy Clinic, Solan. We are starting this YouTube channel for theoretical, practical, and clinical aspects of physiotherapy to be covered for the patients as well as for the students. जो पहला टॉपिक है मैं जो लेना चाहता हूँ वो है बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. बट बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फोर्स वेक्टर्स. जब तक हमें ये फोर्स वेक्टर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें अच्छी तरह से मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्लियर नहीं होगी. फोर्स वेक्टर्स के अंदर देयर आर मैनी सब टॉपिक्स, बट द फर्स्ट important thing that I want to discuss here is the difference between the lever arm and the movement arm. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए. ये जो मैं डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ, कैन यू सी दिस हाइपोथेटिकल बोन which is represented as a humerus, whereas this is a radius and this is elbow joint which is at approximately 70 degrees of flexion. Now everyone knows, the physiotherapy students know that the insertion of the biceps is at the radial tuberosity of the humerus and origin is from the shoulder above, from the scapula. So when we are doing open chain kinematic exercises, open chain kinematic exercises means when we are doing like this is shoulder flexion, this is an open chain kinematic exercise. If you see the direction of force vectors, in case of open chain kinematic exercises, the direction of force vector is from insertion to origin, whereas in case of closed chain kinematic exercises, the direction of force vector is from origin to insertion. ये है एक इतना important fundamental law है to understand the biomechanics. If you don't understand open chain kinematic exercises and closed chain kinematic exercises, where is the direction of force vectors, you are making it all wrong. So for open chain kinematic exercises, the direction of force vector is from insertion to origin. So यहाँ पे मैंने एक elbow joint को दिखाया है और elbow joint का 70 degrees of approximately flexion दिखाया हुआ है, जिसमें biceps का force vector is from insertion towards origin point कर रहा है, because this is an open chain kinematic exercise. अब इस force of biceps को, जो कि biceps का force vector, उसको हमने resultant लिख दिया है, because that is the resultant vector. And resultant, as everybody knows, हमने physics में क्लास 12 में भी resultant की resolution of vectors पढ़ा था कि resultant को हम दो components में divide कर देते हैं. एक होता है vertical component और एक होता है horizontal component. vertical component जो होता है उसको हम sin theta कहते हैं और horizontal component जो होता है उसे हम cos theta कहते हैं. तो इसी तरह मैंने इस resultant vector of biceps को दो components में divide किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स साइन ऑफ थीटा एंड फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स कॉस ऑफ थीटा. जो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो रेडियस उस बोन की पैरेलल होगा जिस बोन में वो मसल इंसर्ट कर रही है. तो ये वेक्टर जो है वो रेडियस के पैरेलल आ गया. सो दिस इज फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स कॉस ऑफ थीटा. और रेडियस के परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे जो वेक्टर जाएगा दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट मसल. सो ये हो गया फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स साइन ऑफ थीटा. अगर हम देखें उसके बाद इसको हम एक क्लोज्ड रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करें, जो कि मैंने ब्लू डॉटेड लाइन से आपको शो किया हुआ है इधर डायग्राम में. तो अगर हम इस डायगोनल या रेक्टेंगल को क्लोज करें विद द ब्लू लाइंस, तो हमारे को दिखेगा कि जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है वो रिजल्टेंट है, यानी कि हमारी वर्टिकल कंपोनेंट की और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है. सो बाइसेप्स साइन ऑफ थीटा जो है दैट इज अ बिगर वेक्टर, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और बाइसेप्स का कॉस ऑफ थीटा दैट इज अ स्मॉलर वेक्टर, दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अ स्मॉलर वेक्टर. इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू कवर हियर इज कि लिवर आर्म और मूवमेंट आर्म के बीच में डिफरेंस क्या है. इफ यू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन टू द जॉइंट एक्सिस, जहाँ पे मसल इंसर्ट करती है, और जॉइंट एक्सिस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लिवर आर्म कहते हैं. जबकि मूवमेंट आर्म जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा मसल वेक्टर से जॉइंट एक्सिस तक. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है. सो इफ यू सी फ्रॉम दिस मसल फोर्स वेक्टर जॉइंट एक्सिस तक, shortest possible distance is always at 90 degree. So this particular component, the shortest possible distance of the muscle force vector to the joint axis is known as movement arm, whereas the distance of the muscle force vector from its point of insertion to the joint axis is known as its lever arm.
अब यहाँ पे आप दो डायग्राम्स और डिफरेंट देख सकते हो जिसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करने वाले हैं कि हम वेक्टर्स की रेजोल्यूशन से हमें क्या समझ में आने वाला है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज very significant and it is very important. We are going to understand that with the help of these two diagrams. अगर आप पहले ये वाला डायग्राम देखें, डायग्राम ए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एल्बो जॉइंट मैंने बनाया है जो कि 70 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में है। ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स जो कि रिजल्टेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में बना हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज वी आर डूइंग ओपन चेन काइनेमेटिक एक्सरसाइज। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रेजोल्यूट कर दिया है इनटू फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स साइन ऑफ थीटा एंड फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स कॉस ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा जो वेक्टर है दैट इज एट 90 डिग्रीज टू द रेडियस फ्रॉम द बोन फ्रॉम विच इट इज इंसर्टेड। सो फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स साइन ऑफ थीटा एंड फोर्स वेक्टर ऑफ बाइसेप्स कॉस ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम सपोज जिम में जाके डंबल उठा रहे हैं जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 10 kgs है, हमारे हाथ में 10 kg का डंबल है जिसको हम उठा रहे हैं और एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं और ये बाइसेप्स का ही फंक्शन है, तो हमारी बाइसेप्स पे लोड कैसा हो रहा है। सो अगर हमारी बाइसेप्स 10 kg का लोड अप्रोक्सीमेटली उठा रही है तो वो 10 kg ही बाइसेप्स के ऊपर नहीं लग रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड हो रहा है एक वर्टिकल कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। सो अगर हम 70 डिग्रीज पे बात करें, 70 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन पे वर्टिकल कंपोनेंट हमारा बड़ा कंपोनेंट है। इफ यू कैन सी द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट इज मोर एट 70 डिग्रीज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो छोटा कंपोनेंट है और वो जॉइंट एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जॉइंट एक्सिस। सो ये जो वेट 10 kg का हमने उठाया हुआ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 8 kg जो है वो साइन थीटा पे चले जाएगा बिकॉज इट इज अ बिगर वेक्टर, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में 2 kg का वेट ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ दैट मींस जब हम बाइसेप्स उठा रहे होते हैं, मतलब हम वेट उठा रहे होते हैं जिम में अप्रोक्सीमेटली 10 किलो का, तो इसका मतलब है कि हमारी बाइसेप्स 10 किलो का काम नहीं कर रही है, अप्रोक्सीमेटली वो कितने किलो का काम कर रही है, 8 kg का, क्योंकि 2 kg की जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू टूवर्ड्स एल्बो जॉइंट एक्सिस में जा रही है। उससे फायदा क्या हो रहा है, बिकॉज दिस वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द जॉइंट एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉइंट एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये एल्बो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो 2 kg ऑफ फोर्स इज गिविंग द स्टेबिलिटी टू द एल्बो जॉइंट। सो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिविंग स्टेबिलिटी टू द एल्बो जॉइंट। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँ जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं वो या तो जॉइंट एक्सिस की तरफ जा रहे होते हैं, डायरेक्शन उनकी, या फिर अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस जाते हैं। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा टूवर्ड्स जॉइंट एक्सिस जा रहा है, टूवर्ड्स जॉइंट एक्सिस जा रहा है, दैट मींस वो स्टेबलाइज कर रहा है जॉइंट, इट इज स्टेबलाइजिंग द जॉइंट। जब हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अवे फ्रॉम जॉइंट एक्सिस जा रहा है, अवे फ्रॉम joint axis, it is going away from joint axis, that means it is destabilizing the joint. So this is very important to understand कि एक horizontal component या तो उसके पास दो choices हैं, या तो it is acting towards the joint axis और second choice क्या है, it is acting away from the joint axis. But at 70 degrees of elbow flexion, the horizontal component की direction is towards the joint axis, that means it is stabilizing our elbow joint. Come to diagram B at 120 degrees of elbow flexion. What is happening? The resultant is the force vector of biceps जो कि 10 kg का लोड उठा रहा है, and उसके दो components हमने बनाए, एक sin थीटा जो कि 90 degrees to the radius act करेगा, so this is acting at 90 degrees to the radius, और एक होगा cos थीटा that is acting as the horizontal component that is acting parallel to the radius. So this is your radius. So this component is acting parallel to the radius FP cos theta, but it is acting away from the joint axis. तो जब हमारा elbow joint 120 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में जाता है और 10 kg का लोड उसने उठाया हुआ है, देखिए ये 90 डिग्रीज हुआ एल्बो फ्लेक्शन, ये 120 डिग्रीज हुआ एल्बो फ्लेक्शन। जब 120 डिग्रीज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन में 10 kg ऑफ लोड हमारी बाइसेप्स उठा रही है, तो वो लोड जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। One will be your horizontal component FP cos theta and one will be your vertical component
एफ बी साइन थीटा। यहाँ पे एफ बी साइन थीटा जो है वो यहाँ पे इस तरफ एक्ट कर रहा है और 90 डिग्रीज होता है ये हमेशा, और रेडियस के 90 डिग्रीज होता है। whereas एफ बी cos थीटा is now not acting towards the joint axis, it is acting away from the joint axis. That means this cos theta is destabilizing the joint. It is destabilizing the joint. अब होगा क्या? Let us see one thing that 120 डिग्रीज पे अगर आप 10 kg का डंबल उठा रहे हो तो 6 kg की फोर्स, because horizontal component is a bigger component now and vertical component is a smaller component now, तो 6 kg of force is acting along the horizontal component and only biceps is lifting is 4 kg of load. तो 6 kg of load जो है वो horizontal component में एक्ट कर रहा है, जो कि एक्ट कर रहा है away from the जॉइंट एक्सिस। तो ये 6 kg ऑफ फोर्स जो है वो जॉइंट को इंजर कर सकती है या एल्बो जॉइंट के लिगामेंट्स को नुकसान दे सकती है। एल्बो जॉइंट्स के लिगामेंट इंजर हो सकते हैं, उनमें स्प्रेन आ सकता है, टेनिस एल्बो हो सकता है। तो इसलिए हमें 120 डिग्रीज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन में हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट नहीं रहता, बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टेबलाइजिंग कंपोनेंट बन जाता है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस विद आवर चैनल। वी विल बी कवरिंग द detailed mechanics of human body in the next upcoming videos. Thank you all.